پاکستان میں انویٹیشن ملی وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو بہت سراہا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ پھر ادا کیا۔ جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے ان کی اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں تو ٹرمپ کی۔ کابینہ نے مشاورت سے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا، امید ہے غزہ میں جلد امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے۔ ڈیووس کا دورہ زبردست رہا، صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ MD IMF کے ساتھ ملاقات شاندار رہی، MD IMF نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا۔ ایسے بیانات کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور بدقسمتی سے سیکیورٹی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف، بحالی اور آبادکاری کے محکمے کے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اطلاعات کے مطابق 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی، جو بعض علاقوں سے ممکنہ، عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات۔ حکومت نے وادی تیرا سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ علاقے کو خالی کرانے سے متعلق خبریں گمراہ کن ہیں، احتجاج کی سیاست میں کچھ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی خدمت پر توجہ دے۔ آئندہ الیکشن احتجاج کی کال پر نہیں، عوامی خدمت پر لڑا جائے گا۔ لوگ احتجاج کی کال سن سن کر تھک چکے۔ صوبائی حکومت عوامی خدمت اور دہلیز پر سہولتیں فراہم کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی کوٹ مومن نے میڈیا سے گفتگو۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 3 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہلاک، دہشت گردوں میں مقامی کمانڈر فاروق عرف سورو، عادل اور وسیم شامل۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ فتنۃ الہندوستان کے خلاف آپریشنز قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملہ آور بھی افغان شہری نکلا۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خودکش بمبار کی شناخت 21 سالہ عبد الرحمان کے نام سے ہوئی۔ دھماکہ امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں کیا گیا۔ 5 افراد جاں بحق۔ افغان طالبان رجیم کی منظم سرپرستی میں فتنہ الخارج کی دہشت گردی اور خودکش حملے خطے کے لیے ناسور بن چکے۔ افغان طالبان رجیم کا جلد اور فیصلہ کن خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ماہرین پاکستان اور بنگلہ دیش کا مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین کا ٹیلی فونک رابطہ۔ 2 طرفہ تجارت اور معاشی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا جائزہ۔ مشترکہ مفادات کے فروغ کے ساتھ علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل روابط کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفہ کی ٹیلی فون گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 2 سال میں ملکی معیشت مستحکم۔ PTI حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئی تھی۔ دیوالیہ ہوتے ملک کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مارکہ حق کی طرح اڑان پاکستان پروگرام میں بھی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں تقریب سے خطاب۔ بدلتا نظام، نکھرتا پنجاب۔ ہر شہر میں سیوریج، ڈرینیج لائنز اور پختہ سڑکیں بنائی جائیں گی۔ شہریوں کے لیے صحت اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔
گجراوالا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاڑی، شیخوپورہ اور قصور میں ترقیاتی کام جاری۔ ہر محلے، ہر گلی میں آسان، محفوظ اور باوقار زندگی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ سانحہ گل پلازہ آتش زدگی کو ایک ہفتہ مکمل، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ سانحہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ ڈی این اے نمونوں کے ذریعے 16 میتوں کی شناخت ہو چکی۔ مزید ملنے والی باقیات کو بھی ڈی این اے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق 5 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آج سے منگل تک مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید برف باری کا امکان۔ مری، گلیات، نران، استور اور سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مری میں سنو کلیئرنس سیل مسلسل متحرک۔ برف ہٹانے کے لیے جدید ترین مشینری کا استعمال۔ برف توڑنے اور ہٹانے کے لیے میکینیکل سنو سویپر سڑکوں پر لگا دیے گئے۔ گورنر ہاؤس، ابوظہبی روڈ، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور دیگر سیاحتی مقامات بھی برف ہٹانے کے بعد کھول دیے گئے۔ برف باری کے باعث پھنسے شہریوں کے انخلاء کے لیے پاک فوج کی بروقت کارروائی۔ کوٹلی نکیال سڑک ٹریفک کے لیے بحال۔ جد روڈ اور پیر نصورہ میں برف باری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ متاثرین کو خوراک، ایندھن اور دیگر امدادی اشیاء کی فراہمی۔ پاک فوج سخت موسمی حالات کے باوجود عوام کی خدمت اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے پرعزم۔ وادی تیراہ میں شدید برف باری۔ علاقے میں متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل اور ہنگامی طبی امداد سمیت ضروری اشیاء کی فراہمی۔ پاک فوج کی بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث اہم زمینی رابطے بحال۔ سخت موسمی حالات میں امدادی اقدامات پر مقامی شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا۔ آزاد کشمیر کے علاقے وادی لیبا میں شدید برف باری، زمینی رابطہ منقطع۔ پاک فوج کا کامیاب ریسکیو آپریشن۔ طبی پیچیدگی کی شکار مریضہ اہلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری اسپتال منتقل۔ افغان طالبان کے دور میں معیشت شدید زبوں کا شکار۔ افغانستان میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی قانونی فریم ورک موجود ہی نہیں۔ بین الاقوامی پابندیاں اور واضح معاشی پالیسیوں کی عدم موجودگی نے سرمایہ کاری کو ختم کر دیا ہے۔ بے روزگاری کی شرح بھی 75% تک پہنچ گئی۔ سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق آہدی نے طالبان کے معاشی بہتری کے دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی، بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کی تعریف۔ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے واشنگٹن میں خود کو دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نئی سمت، بھارت امریکہ تعلقات منجمد ہونے لگے۔ دی ڈپلومیٹ۔ دنیا بھر میں کشمیری کل بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت ہر ملک کے دارالحکومت میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کا نوٹس لے حریت کانفرنس کا ہندواڑہ قتل عام کے شہداء کو 36ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت۔ کشمیریوں کے قتل عام کے واقعات کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلیڈلفیا اور بوسٹن میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج۔ 18 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل۔ 2 درجن سے زائد ایئرپورٹس مکمل طور پر بند، پروازیں منسوخ۔ برفانی طوفان سے 24 کروڑ امریکی شہری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سیان ڈفی۔
अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स की हलाकत, शहरियों का एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिरीन के साथ झड़पें और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। मिनेसोटा के गवर्नर का ट्रंप इंतजामिया से शदीद एहतजाज, फौरन इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत को हवा देने का इल्जाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेटर्स की मुलाकात। टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद मिल गया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दोहरे मेयार को मुस्तरद करता है। चेयरमैन पीसीबी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ शामिल। बांग्लादेश को बाहर करके आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा बनाया। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश की मुकम्मल हिमायत। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, ये फैसला हुकूमत करेगी। भारत में सिक्योरिटी खर्चात के बायस बांग्लादेश ने टीम भेजने से इनकार किया। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। आईसीसी ने बांग्लादेश के जायज़ खदशात मुस्तरद किए। यकतरफा फैसला करते हुए स्कॉटलैंड को बतौर मुतबादिल टीम वर्ल्ड कप में शामिल कर दिया। Lost it in the bounce. Well, they didn't give them 40. This is a chance down there. Beardman takes it. He's just too good, Payne. He's got that many changes. There'll be another one. 40s, give him something to bowl at. बिग बैश क्रिकेट लीग का टाइटल पर्थ स्कॉचर्स के नाम। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। पर्थ स्कॉचर्स ने 133 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। डेविड पाइन 3 विकेटों के साथ प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मेलबर्न स्टार्स के बल्लेबाज सैम हार्पर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बिग बैश लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए। And he does. 6 of the best in the West. A half dozen. 6 titles for this amazing cricket team, the Scorchers. They do a big job on the sixes, stream onto the ground. They are... That's an edge also. Lakshman strikes again. Knocks him over. आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से हरा दिया। 119 रन का आसान हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया। चार्ल्स लैचमैन की 3 विकेट्स, प्लेयर ऑफ द मैच करार। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। The most impressive performance. और इस्लामाबाद मैराथन के 6ठे एडिशन का कामयाब इनेकाद। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़। मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, जात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों,
कार रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि काबीना ने मुशावरत के साथ गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे और गजा की तामीर नौ से पूरे खित्ते में अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा किया। जंग बंदी हुई, जिसकी वजह से जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जानें महफूज हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डेवोस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों में बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जानें बचाई ट्रंप की। हुकूमत ने उन गुमराह कुन खबरों का नोटिस लिया है जिनमें दावा किया गया है कि वादी इराक को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक उनका मकसद अवाम में खौफ और हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी इराक को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम तीराह के बाज़ इलाकों से मुमकिना आर्जी और रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकल मकानी के पेश नज़र रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये मुजवज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। मकामी आबादी खुद खारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीराह में अमनो इस्तेहकाम चाहती है। लिहाजा सूबाई हुकूमत या उसके किसी ओहदेदार की जानिब से इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाज से जोड़ना सरासर गलत, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक ऐसे बयानात सियासी फायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं और बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने वादी तीराह से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि इलाके को खाली करवाने से मुतालिक खबरें गुमराह कुन हैं। मजीद तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वादी तीरा से मुतालिक नशर की गई खबरें हकायक के बरअक्स हैं। हुकूमत ने इन गुमराहकुन खबरों का नोटिस लिया है जिसमें दावा किया गया कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना सरासर गलत, बेबुनियाद, मनगढ़ंत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो DC खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ, उसमें जो रजाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है और मौसमी हालात शामिल हैं, तो ये रकम उनके लिए रखी गई है। ये जो एक तासर दिया जा रहा था कि फौज जो है वो इलाके को खाली करा रही है और इनखला जारी है, ये बिल्कुल एक गलत खबर फैलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से एहतजाज की काल के सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एहतजाज की सियासत में कुछ नहीं रखा। अवाम इस तरह की कॉल से तंग आ चुके हैं। बेहतर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वो डिजर्व करते हैं कि उनको भी जिंदगी का वही मेयार मिले जो बाकी सूबों के अंदर मौजूद है। आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके कि आप हर वक्त एहतजाजी कॉल्स दें और दीगर सूबों में जाके एहतजाज करें। आप सेफ सिटी बनाएं, CTD की फोर्स बनाएं, फोरेंसिक लैब बनाएं, लोगों की जिंदगियां आसान करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, टेररिज्म को आप काउंटर करें,
اس کے لیے तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए। इससे कबल चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दहशतगर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। TTP का खात्मा और शरपसंद अनासर जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला खात्मा होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए खुसूसी पैकेज पर काम हो रहा है। हमारी तरजीह है कि मुल्क के तमाम हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को इस पैकेज में शामिल किया जाए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर मोहम्मद तौहीद हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस मौके पर तिजारत और माशी ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जिसमें मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत जारी आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वालों में मकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक उर्फ सोरो, अदील और वसीम शामिल हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजगोर में फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलिकत ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और सिक्योरिटी फोर्सेज का किरदार काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई की और कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमला करने वाला अफगानी निकला। वीडियो भी सामने आ गई। खुदकुश बमबार की शनाख्त 21 साला अब्दुर्रहमान नामी शख्स से हुई है। फुटेज के मुताबिक खुदकुश बमबार सफेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार कबायली रक्स के दौरान अचानक पिंडाल छोड़कर अकब में वाक़े कमरे की तरफ गया, जहां काबिरीन इलाका मौजूद थे। खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में कमरे की छत मुनहदिम हो गई। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। खुदकुश हमला अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की वजह से दहशतगर्द अब बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेज का सामना करने की सलाहियत खो चुके हैं। दहशतगर्द अपनी नाकामी छुपाने और खौफ फैलाने के लिए अवामी इज्तिमात, मजहबी तकरीबात और निहत्ते शहरियों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों की शमूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द नेटवर्क्स को रियासती सतह पर मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलत फराहम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम की मुनज़्ज़म सरपरस्ती में फितनतुल ख़वारिज की दहशतगर्दी और खुदकुश हमले खित्ते के लिए नासूर बन चुके हैं, जिनका जल्द अज जल्द और फैसला कुन खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI हुकूमत खजाना खाली छोड़कर गई थी। मौजूदा क़यादत की कोशिशों से महज 2 साल की कलील मुद्दत में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। विफाकी वजीर की नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब की तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। नारोवाल के इलाके फतोवाल में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि PTI ने इंतशार और फसाद की सियासत को फरोग दिया और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। आज पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अजीम कामयाबी की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। जब भारत ने हम पर हमला किया तो वो कारनामा करके दिखाया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर फौज ने भारत को वो जवाब दिया कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। अगर आज पाकिस्तान की सदर ट्रंप तारीफें कर रहा है तो उससे किसको मरोड़ उठ रहा है? हमारे
दुश्मन को मरोड़ उठ रहा है और इधर मुल्क के अंदर किसको मरोड़ उठ रहा है? पीटीआई को मरोड़ उठ रहा है। आज अगर तकलीफ है पाकिस्तान के बोर्ड में शामिल होने की तो वो हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान परेशान है कि पाकिस्तान को क्यों ये मुकाम मिल रहा है। उधर हिंदुस्तान को तकलीफ है और इधर मुल्क के अंदर हमारी ऑपोजिशन को तकलीफ है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। मुल्क की मैशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। मार्का हक की तरह उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। आज हम पाकिस्तान की मईशत को दोबारा मजबूत करने के लिए उड़ान पाकिस्तान के प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत उड़े, हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम मिले, हमारे नौजवानों को अच्छा हुनर मिले। हम आज दोबारा मुल्क की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, मुल्क की ज़राअत को जदीद बना रहे हैं। 1000 हमने माहिरीन चीन भेजे हैं कि वो चीन से जदीद तालीम लेकर आएं और हमारी ज़राअत भी जदीद बुनियादों के ऊपर हो। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की ने कहा कि माजी में एक नाअहल वज़ीर आला को पंजाब पर मुसल्लत करके तरक्की का रास्ता रोका गया। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पंजाब के 51 शहरों में सूबाई तारीख के सबसे बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट मरियम नवाज का सोहना पंजाब शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए पंजाब को मजीद हसीन बनाने का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म देते हुए कहा कि हर मनसूबे की मॉनिटरिंग की जाए और खुद भी वो इसकी निगरानी करेंगी। मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 51 शहरों में सेहत और बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाने के लिए 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइन्स तामीर की जाएंगी। शहरी सहूलत और आसान आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए मरियम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और पुख्ता गलियां मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर मुमलिकत चौधरी अरमखान सुबहानी और रुकन पंजाब बार काउंसिल चौधरी रजा सुबहानी की वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तिकामत की दुआ और मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहा कि अल्लाह ताला मरहुमा को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ चनियोट के इलाके रजुआ सादात गए। वज़ीर इत्तलात ने पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की और उनके बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ सदगोदा की तहसील कोट मोमिन में सीनियर सहाफ़ी सैयद ओन शराजी के घर गए और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात ने मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान टीवी डिजिटल के स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर सैयद अरसलान शराजी की नौमौलूद बेटी के इंतकाल पर भी दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मियां मनाजिर अली रांझा भी उनके हमरा थे। सानहे गुल प्लाजा को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई है। DNA के जरिए शनाख्त होने वाली मैयतों की तादाद 16 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मलबा उठाने का काम चलता रहेगा। कल रात भी कुछ बाकियात मिली हैं। बाकियात को DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लैस होना चाहिए और एमरजेंसी अखराज के वाज़ेह अलामतें और बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। कराची में जामे फायर सेफ्टी ऑडिट इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत ने सूबे भर में इब्तदाई ऑडिट मरहले में मजमूई तौर पर 2368 इमारतों की निशानदही की है, जिनमें सखर, कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, लड़काना और मीरपुर खास की इमारतें शामिल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इमारत में बेसमेंट और मेज़ानाइन को सिर्फ पार्किंग मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दीगर मकासद जैसे दुकानों या गोदामों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध ने हिफाजती इक़दाम के हवाले से कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयने को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد رہا اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -14، استور کالام نتھیا گلی -9، کالام پاڑا چنار قلات -8، گوپس -7، مالم جبہ -6، سکردو اور کوئٹہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 1، لاہور 5، کراچی 8، پشاور 3، جبکہ کوئٹہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت رہا 3 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت 0، سکردو -5، مظفر آباد -1، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے آج رات سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ آج رات سے نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا جس کے باعث بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع بشمول کوئٹہ، زیارت، چمن بشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، نوشکی، ہرنائی، یوب، کلات، بارخان، سبی، تربت، گوادر، جوانی، کیچ، آوران، پنجگور، خزدار اور واشق اور خاران میں تیز ہواؤں جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ اسی دوران سندھ، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور دادو میں بھی بارش کی توقع ہے۔ 26 اور 27 جنوری کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری کی توقع ہے۔ چند مقامات پر شدید برفباری کا بھی امکان ہے، خصوصاً چترال، دیر، سوات، کالام، شانگلہ، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مری، گلیات، وادی نیلم، باغ، حویلی اور راولہ کوٹ۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطرہ موجود ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور بالائی پنجاب میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ برفباری کے باعث پھنسے شہریوں کے انخلاء کے لیے پاک فوج کی بر وقت کارروائی، کوٹی نکیال سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ پاک فوج کی جانب سے جند روڈ اور پیر نصورہ میں برفباری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا گیا ہے۔ اس موقع پر متاثرین کو خوراک اور دیگر امدادی اشیاء بھی فراہم کی گئیں۔ پاک فوج نے پیر نصورہ میں متعدد خاندانوں کو ریسکیو کر کے امداد فراہم کی۔ برفباری میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو پیٹرول بھی فراہم کیا گیا۔ پاک فوج سخت موسمی حالات کے باوجود عوام کی خدمت اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے علاقے وادی لیپا میں شدید برفباری کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج نے بروقت کامیاب ہیلی ریسکیو آپریشن کیا۔ طبی پیچیدگی کی شکار مریضہ کو فوری اور محفوظ انداز میں ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پاک فوج کا یہ آپریشن ہیلی پیڈ کی تیاری سے لے کر راستوں کی بحالی اور بروقت فضائی منتقلی تک ہر مرحلہ اعلیٰ نظم و ضبط کا عکاس ہے۔ آرمی ہیلی آپریشن اس بات کا غماز ہے کہ پاک فوج ہر طرح کے حالات میں انسانی جانوں کو ترجیحی بنیادوں پر سر انجام دیتی ہے۔ مقامی آبادی کی جانب سے اس اقدام کو سراہا جانا اس اعتماد کا اظہار ہے کہ جو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، بروقت فیصلہ سازی اور عوامی خدمت کے جذبے پر قائم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مری میں قائم کردہ سنو کلیئرنس سیل کی شاندار کارکردگی، متواتر 30 گھنٹے برفباری کے بعد 185 کلومیٹر طویل چھوٹی بڑی 48 شاہراہیں مکمل کلیئر ہونے سے مری کی رونقیں لوٹ آئیں۔ مری کی سڑکوں پر جمی 2-2 فٹ برف ہٹانے کے لیے جدید ترین مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ برف توڑنے اور ہٹانے کے لیے میکینیکل سنو سویپر سڑکوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ مری کے بیشتر حصوں میں ٹریفک کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ برفباری پر پھسلن سے بچاؤ کے لیے سڑکوں پر مسلسل نمک پاشی بھی کی جا رہی ہے۔ پاکستان بھر میں سردی کی شدید لہر کے باعث کئی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی سے کئی سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز تک ملک بھر میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जनवरी से 27 जनवरी के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बारिश और चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी मुतवक्के है। PDMA का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी के बायस बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा है। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद और फिसलन का खदशा जाहिर किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। NDMA ने मुतलका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी मशीनरी और रिस्पांस टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। शहरी शदीद मौसमी हालात के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अफगान तालिबान की दोबारा इक़्तिदार में वापसी के बाद अफगानिस्तान की मईशत शदीद ज़ुमूहाली का शिकार हो चुकी है। साबिक अफगान वज़ीर ख़ज़ाना अनवारुल हक अहदी ने अफगानिस्तान इंटरनेशनल को इंटरव्यू में तालिबान की माशी तरक्की या बहाली के दावों को बेबुनियाद करार दिया है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए ना तो कोई कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद है, ना ही सिक्योरिटी और तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत दस्तयाब है। बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ और वाज़ेह माशी पॉलिसियों के अदम मौजूदगी ने सरमायाकारी को तकरीबन खत्म कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बेरोजगारी की शरह 75% तक पहुंच चुकी है, जबकि दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। रिपोर्ट में 2026 में बड़े माशी बहरान का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि माहिरीन तालिबान की नाकिस पॉलिसियों को सिक्योरिटी और इंसानी बहरान की बुनियादी वजह करार दे रहे हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीदे की तारीफ दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से वाशिंगटन में खुद को दोबारा एक नागुज़ीर और काबिले एतमाद शराकतदार साबित कर दिया है। अपनी मजबूत सिफारतकारी से पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई समत दे दी। पाकिस्तान ने इलाकाई तनाज़े को आलमी सिफारती फायदे में बदलकर अमरीका में अपनी अहमियत बनाई है। डिप्लोमेट के मुताबिक भारत जो अमरीका का इत्तेहादी समझा जाता था, 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। मई 2025 के पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरे मुंजमद कैफियत में दाखिल हो गए हैं। इसी बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके में बदला और सदर ट्रंप के सालसी किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। सितंबर 2025 में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। द डिप्लोमेट के मुताबिक सालसी के दावे को खुद मुख्तारी की तौहीन करार देने के बाद भारत को न क्वाड समिट मिली, न ट्रंप का दौरा और न ही तिजारती रिलीफ हासिल हो सका। जुलाई 2025 में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ में कमी का अहम तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान के वसाइल में तवील मुद्दती सरमायाकारी शामिल है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बड़े तेल ज़खायर को तरक्की देंगे। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान ने F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए अमरीकी मंजूरी हासिल की। F-16 अपग्रेडेशन पैकेज की मजमूई मालियत $680 मिलियन बताई गई। जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने चीन के साथ सफारती ताल्लुकात की तजदीद पर भी जोर दिया। अमरीका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया, जबकि माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत और असर रसूख को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इस्लामाबाद की दानिशमंदाना सिफारतकारी ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजबूत और पायदार बनाया। पाकिस्तान ने इलाकाई चैलेंजेस को फायदे में बदलकर अपनी आलमी किरदार को उजागर किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की महारत और हिकमत अमली ने खित्ते में इसकी सियासी और इक़्तिसादी कुव्वत को बढ़ाया। सदर ट्रंप की सालिसी को झुटलाते हुए मोदी ने भारत को सिफारती तन्हाई, भारी टैरिफ और अमरीकी नाराजगी के हवाले कर दिया। भारतीय जंगी जराइम और नाम नहाद जमहूरियत के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए नुमाया किया गया। तफसील से आगाह करेंगे अदील अहमद खान। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ऐवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद के बाहर मुनक़दा एहतजाजी धरने के दौरान मकबूजा कश्मीर में जारी काबज़ भारतीय फ़ौज की जारियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को पोस्टर्स के जरिए उजागर किया गया। आज हमने उन तमाम जंगी जराइम को और तमाम मजालिम को इन 50 पोस्टर्स के ऊपर लिखकर अवीज़ा किया और उनको बेनकाब करने की कोशिश की है। जो तहरीरें दर्ज हैं ये 50 के करीब पासबान आर्मी जम्मू कश्मीर के जरिए तमाम ये शाया की गई हैं, जो भारत की फौज ने, वहाँ की एजेंसियों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ऊपर मजालिम ढाए हैं। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि भारत ने कश्मीरी अवाम से उनकी रियासत छीन कर इस पर नाजायज और गैर कानूनी तसल्लुत जमा कर कश्मीरियों को बुनियादी इंसानी
इंसानी, समाजी और जमहूरी हुकूक से महरूम कर रखा है और ढिठाई से सबसे बड़ी जमहूरियत का झूठा दावेदार बना बैठा है। इस वक्त भारत हिंदुस्तान के उस फलसफे पर अमल पा रहा है जो दुनिया में तबाही का सबब है, जो दुनिया में आग और खून की हेली खेलने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा को ये बता रहे हैं कि ये जमहूरी मुल्क नहीं है बल्कि एक दहशतगर्द मुल्क है और इसकी दहशतगर्दी दुनिया में अवेजा करना चाहते हैं कि फेल फोर इस पे कंट्रोल करें, क्योंकि ये जाबर, जालिम और मक्कार मुल्क है। मुजाहिरीन ने भारत की जाली जमहूरियत और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने ढोंग जमहूरियत हाय हाय और जाली जमहूरियत हाय हाय जैसे फलक शिगाफ नारे लगाए और आलमी बरादरी की खामोशी पर भी सख्त एहतजाज किया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, जिसका मकसद आलमी बरादरी पर जोर देना है कि वो जम्मू कश्मीर पर जारी भारत के गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने से उसके मुसलसल इनकार का नोटिस ले। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम सियाह मनाने की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दारुल-हुकूमतों में भारत मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने यौम जमहूरिया की नाम नहाद तकरीबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलाके को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर और जम्मू समेत दीगर तमाम शहरों और कस्बों में छापों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। अहम शाहराहों पर इजाफी चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जहाँ गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त तलाशी ली जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हिंदवाड़ा कत्लेआम के शोहदा को उनकी 36वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए कश्मीरियों की अजीम कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरियों के कत्लेआम के रज़ाखेज़ वाक़यात ने भारत का नाम नहाद जमहूरी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वो हिंदवाड़ा और कत्लेआम के दीगर वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात के लिए अपना किरदार अदा करें। उधर जंग बंदी के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गजा में इसराइली ड्रोन हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। सिविल डिफेंस के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन हमला बैतुल्लाहिया में कमाल अदवान अस्पताल के करीब किया गया, जिसके नतीजे में 2 फ़लस्तीनी लड़के जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों की उम्रें 13 और 15 साल थीं। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने शहरियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक और फ़लस्तीनी जाम बहक हो गया। उधर अमरीका की मुतादिद रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मुल्क भर में 10,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका की 18 रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहर्रिक हैं, जबकि तूफान के बायस 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा है। शिमाली अमरीका में शदीद सर्दी और आर्कटिक हवाओं का राज है। मिशिगन झील मुंजमद हो गई है, जबकि एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह भी बर्फ से ढक चुकी है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भी बर्फबारी का इम्कान है। शदीद बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 10,000 से ज़्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 84,000 से ज़्यादा सार्फिन से मुतल्लिक बिजली से महरूम होने की इत्तलात हैं। मेयर न्यूयॉर्क ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सूरत हाल पर कहना है कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की दावत पर इटली की सफ़ीर मेरिलिना आमेलन ने वफ्द के हमरा मुल्तान के दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद पर हाजिरी दी। सज्जादा नशीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें रिवायती अजरक पहनाई और फूल पेश किए। अतालवी सफ़ीर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्तान की मेहमान नवाजी, रवायात और रूहानी फ़ज़ा बेहद मुतासर कुन है और हर बार मुल्तान आकर खुशी और अपनायत महसूस करती हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि साबिक दौरे हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम अब तक मुश्किलात में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और सफेदपोश अफराद अपनी बच्चियों की शादी के लिए गवर्नर हाउस दरखास्त दे सकते हैं। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि गुल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में गुल प्लाजा सानहे में शहीद होने वाले मोहम्मद आफ्ताब के अहले खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि शहीद के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात और गुल प्लाजा सानहे के शोहदा के लवाहिकीन के लिए प्लॉट और घरेलू अखराजात की जिम्मेदारी लेता हूँ।
नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुकम्मल हिमायत की। मोहसिन नकवी ने पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB ने कहा कि वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दौरे मयार को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मेनोअन अमल किया जाएगा। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर्स ने कहा कि हम सब PCB के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मुलाकात में खिलाड़ियों के अलावा हेड कोच माइक हेसन, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, आकिब जावेद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB, डायरेक्टर मीडिया, डायरेक्टर कमर्शियल और दीगर हुक्काम शरीक थे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। तफसील जानिए लाहौर से मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सलमान अली आगा पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान, जबकि फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा कि श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भरपूर अंदाज में की गई है। बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है, आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार और पुरजोश हैं। वर्ल्ड कप में शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग जरूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम आज चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे, और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। और वर्ल्ड कप जरूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन की तकरीब 11 फरवरी को होगी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में PSL ऑक्शन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वर्कशॉप में खुसूसी शिरकत की। प्लेयर्स को फ्रेंचाइज में बरकरार रखने की तादाद के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई। चेयरमैन PCB ने कहा कि तमाम फ्रेंचाइजीज को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। वर्कशॉप के दौरान प्लेयर्स के ऑक्शन प्रोसेस के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्क्वाड तश्कील देने के कवायद व ज़वाबित के बारे में भी ब्रीफ किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के जायज खदशात पसे पुश डालते हुए इसे T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ICC के एक तरफा फैसले को स्कॉटलैंड की टीम को मुतबादल के तौर पर शामिल करके इवेंट को मुतनाज़ बना दिया। सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत भेजने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC बोर्ड ने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया था। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने IPL की नशरियात पर भी पाबंदी लगा रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दो टोक मौक़िफ़ है कि टीम के लिए भारत जाना बिल्कुल महफूज नहीं। खिलाड़ियों को भारत न भेजने का फैसला हुकूमत का है। इस्लामाबाद मैराथन के 6ठे एडिशन का कामयाब इनेकाद किया गया। इवेंट में 6000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की रनर्स ने शिरकत की। शुरका ने 5 कैटेगरीज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। दिलचस्प इवेंट की रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान कयूम।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सजा मैराथन का छठा एडिशन, जिसमें हर उम्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों ने दौड़कर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। रेस F9 पार्क से शुरू होकर जिना एवेन्यू और डी चौक से होती हुई दोबारा F9 पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ, डिप्लोमेट्स हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग जो है एक संडे को एक बहुत अच्छी अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं और मुझे लगता है ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड कि ऐसी हम मजीद एक्टिविटीज़ विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट हम करते रहें। हमारे 5 मेडिकल पॉइंट्स हैं थ्रू आउट द मैराथन, तो वेयर एवर किसी को भी कोई इंजरी होती है, कोई मसला है जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। शुरका ने 5 कैटेगरीज में हिस्सा लिया। फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल थी, जिसमें प्रोफेशनल एथलीट्स एक्शन में दिखाई दिए। हाफ मैराथन में रनर्स ने 21.1 किलोमीटर का फासला तय किया। 10 किलोमीटर मैराथन में भी शुरका बेहद पुरजोश नजर आए। 5 किलोमीटर में सबसे ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस्लामाबाद रन विद अस का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग वॉक तो करते रहे हैं पहले, हम दोनों ही लेकिन आज हमने फर्स्ट टाइम रन किया है और टाइम पे कंप्लीट कर लिया है, तो वी आर वेरी हैप्पी। यूरोप, शुमाली अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन एथलीट्स ने मैराथन में हिस्सा लेकर खेलों की अहमियत को उजागर किया। शुरका ने मैराथन के कामयाब इनेकाद पर मुंतजमीन की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मजीद खेलों के इवेंट्स मुनक्किद होंगे। मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि ये सेहतमंद तर्ज जिंदगी, मुस्बत सोच और कौमी यकजहती का पैगाम देती है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर तमाम लाहौर में तारीखी फैमिली फन साइकिलिंग राइड और रेस का इनेकाद किया गया। 12 किलोमीटर तवील फैमिली फन रेस में 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर खेल, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स और DG स्पोर्ट्स ने भी साइकिल रेस में शिरकत की। लड़कों, लड़कियों और बच्चों के लिए अलग-अलग रेसेस मुनक्किद की गई। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाहौर में जल्द मैराथन कराने जा रहे हैं, जिसमें 10,000 से ज़ायद एथलीट हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल रेस का दायरा कार दूसरे शहरों में भी फैलाया जाएगा। और अब BBL की बात करते हैं तो पर्थ स्कॉचर्स ने बिग बैश क्रिकेट लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। पर्थ में खेले गए मैच में सिडनी सिक्सर्स की टीम 20 ओवर्स में 132 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान मोइसेस हेनरिक्स, स्टीवन स्मिथ और जॉर्ज फिलिप ने 24-24 रन स्कोर किए। जूल डेविस 19 और लेचलन शॉ 14 रन बना सके। पर्थ स्कॉचर्स की जानिब से रिचर्डसन और डेविड पेन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। माली ब्रिडमैन ने 2 और एरन हार्डी ने 1 विकेट अपने नाम की। पर्थ स्कॉचर्स ने 133 रन का हदफ 17.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर्स ने पहली विकेट की शिराकत में 80 रन स्कोर किए। मिचेल मार्श ने 44 और फिन एलन ने 36 रन बनाए। जॉश इंग्लिश ने 29 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। सिडनी सिक्सर्स की जानिब से शॉन एबट ने 2 जबकि मिचेल स्टार्क और जैक एडवर्ड्स ने 1-1 विकेट अपने नाम की। डेविड पेन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेलबर्न स्टार्स के सैम हार्पर को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बिग बैश क्रिकेट लीग के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।